is coming in from the national capital, where remember it's a big Delhi battle and you have seen a full-blown political war right now between both the Aam Aadmi Party and the BJP. Now, over the last few days, you have seen the Aam Aadmi Party speaking of a lot more schemes. And there is this fresh political firestorm underway in the national capital, this time over those welfare schemes that have been launched by the Aam Aadmi Party. In a major development, you have the Women and the Child Development Department in the Delhi government and the Health Department that issue a public notice, the one that you see on your screens. And this is refuting claims of any new welfare scheme for women and the elderly. Now, this notice is coming after there were reports on the social media that was circulated by a political party, is what this advertisement really says, that there's going to be an endowment of 2,100 rupees per month under the so-called Mukhyamantri Mahila Samman Yojana, and also a free healthcare for the elderly people above 60 years under the Sanjeevani scheme. So what has happened is that the Delhi government has now made it clear that there is no such scheme that has been notified and the claims are entirely false. The public notice is also warning that since there is no such scheme, then any private individual or a political party collecting forms or any personal data information from any women in the name of this non-existent scheme is committing a fraud. It also says that it has no legal authority to be able to do this. And just a while earlier, you also had the Delhi Chief Minister Atishi, the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, who've addressed a press conference and they've hit back at this entire issue. They say that this is just an attempt by the BJP, which is rattled. Arvind Kejriwal and Atishi both have alleged that the recent public notices are fake. They are saying this has been published under the pressure coming in from the BJP. जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। So that is Arvind Kejriwal saying there is a sinister plan behind all these fake advertisements. But the advertisements that have come in by the Delhi government, remember, have already triggered this massive political face-off between the Aam Aadmi Party and the BJP. While the BJP claims that the Aam Aadmi Party is a party that is just full of deceit, fraud, it lies for electoral gains, the Aam Aadmi Party has refuted all those claims. Now, what they say is that there is a budget that already has been passed for these schemes. Listen in to the swore words between both the parties. 2100 रुपए की योजना और संजीवनी योजना फर्जीवाड़ा है। दिल्ली की जनता इस धोखे में ना रहे तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार का ये विज्ञापन सीधा सीधा दिल्ली की जनता को अपील है कि आप इनके सार्वजनिक झांसे में ना आए। ये डाटा इकट्ठा करके आपको लूटने का काम करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे। जैसे रोज हम साइबर क्राइम की बातें सुनते हैं, ये अरविंद केजरीवाल उसी दिशा में जा रहे हैं। 10 साल के बाद जब अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देना है तो अब विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे अरविंद केजरीवाल और हमेशा की तरह झूठ का सहारा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कल कह रहे थे कि वोट काटा गया एक महिला का, उस महिला ने क्लैरिफाई किया कि वोट नहीं काटा गया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने अरुण जेटली जी पर, गडकरी जी पर, मजीठिया पर आरोप लगाए, उनसे फिर माफी मांगनी पड़ी। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा आईबी की रिपोर्ट है, हम गुजरात चुनाव जीत रहे हैं। तो इस प्रकार से झूठ बोलकर निकल जाना और झूठे वादे जिस प्रकार से किए, बताइए ना, 11,000 डीटीसी बस का वादा किया था, कहाँ है? प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को कहा था, प्रदूषण युक्त कर दिया, नंबर 1 कर दिया। देखो, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है दिल्ली में। फ्रॉड करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी बार बार बाइट दे रहे हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट के नाम से फ्रॉड हुआ है उसकी जिम्मेदारी आतिशी पे है और जो डिपार्टमेंट को देना है
वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी है कि इस तरह का एडवर्टीजमेंट, इस तरह का पेपर साइन दिल्ली की जनता को फ्रॉड करने के लिए किसने किया? कि केजरीवाल जी ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हो सकता है आपके चैनल के लोग भी रहे होंगे वहां पे, उन्होंने घोषणा किया था कि ये चुनाव जीतने के बाद हम दिल्ली के अंदर योजना लागू करेंगे। 2 योजनाएं क्या है? पहली है संजीवनी योजना, जिसमें हम कह रहे हैं कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, लाखों खर्च हो, वो केजरीवाल जी की सरकार करेगी। इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की वो घृणित मानसिकता, जिसमें वो बुजुर्गों से नफरत करते हैं, ये साबित हो गया। वो महिलाओं से नफरत करते हैं, ये साबित हो गया। खुद कोई योजना पूरी नहीं कर सकते, राहत दे नहीं सकते, और कहीं कोई राहत मिल रही है तो उसका विरोध करेंगे। हर चीज में झूठ बोलने वाली एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी, और केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। And the Aam Aadmi Party's India ally at the centre, that is the Congress party, has also called out the AAP over this scheme, and they in fact go on to say that this is again a fake promise. जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है, जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। But this, ladies and gentlemen, just isn't it. Because amidst this entire huge showdown over the welfare schemes, the Delhi Chief Minister Atishi has leveled a serious and a sensational cash for vote charge, this against the BJP. Now, what she says is that there is cash that is being distributed at the residence of the BJP leader, Parvesh Verma, and also demanded action against him. आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा।